Yes, hello dear students. Welcome to the new session on identification of regular language, context-free language and context-sensitive language. देखिए, this is very important topic and from this topic most of the time you will find a question in the GATE examination. कि आपको कोई language given होगी and you have to identify whether the given language is a regular language or a context-free language or a context-sensitive language. Now the question arises, how to identify them? देखिए, there are various ways to identify a regular language or a context-free language or a context-sensitive language. तो इन दिस सेशन डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही डिस्कस करने का है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, if I will discuss about the objectives, so in the first objective I will tell you about the identification of regular language, that is identification of regular language, regular language. Then in the second objective we will discuss identification of context-free language, as well as in the third objective we will discuss identification of a context-sensitive language. So welcome dear Tejas, Rishabh, Biswajit. Yeah, good evening. So we will discuss the identification because this is very important topic और इसमें usually student को confusion होती है, but I am very much sure कि after attending this session you will be able to solve the problems related to the identification. So आइए सबसे पहले देखते हैं identification of RL. How you will identify identification of a regular language, of a regular language. किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about regular language. How we will identify? आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. So there are various ways of identifying whether a given language is regular or not. The first one, first method, कैसे आप identify करेंगे? In the first method, you will be able to identify a regular language if corresponding to a regular language, RL stands for a regular language. If corresponding to RL language, you are able to write a regular expression. आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस द गिवन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन. किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन. देन दैट लैंग्वेज इज नोन एज आर रेगुलर लैंग्वेज. तो आप उसको क्या बोलेंगे? दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज. कैसे बोलेंगे? यू विल कॉल इट एज अ रेगुलर लैंग्वेज. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल. इन द सेकंड मेथड, how you will identify, suppose करो you are having a regular language and you are able to draw a finite automata. आप क्या बना सकते हैं? उससे एक finite automata बना सकते हैं. You are able to draw a finite automata that may be an NFA or it may be a DFA. क्या हो सकता है? It may be an NFA or it may be a DFA. Then on the basis of that you can say that the given language, भाई आप regular language को identify कर रहे हैं, instead of writing RL मैं ये कह देता हूँ ये L है. So you are having a language and you are able to represent that language in the form of a regular expression or in the form of a finite automata. So on the basis of that you can say that the given language is a regular language. The third way, there is an approach ये चेक करने के लिए given language is not regular. Not regularity को prove करने के लिए we use pumping lemma. So you are having a language L and you have to check via pumping lemma. आपको क्या use करना? You have to use pumping lemma, and via pumping lemma you will be able to check this is not regular. इसलिए use करते हैं to check it is not regular, because the purpose of pumping lemma, is to verify the given language is not regular. इसका purpose क्या है? To verify the given language is not regular. I hope this is clear to everybody. And the fourth way, is there any other way to recognize the given language is a regular language or not? Regular expression हो गया and you are having a finite automata, or any other way. Yeah, there is a fourth way to identify the given language is a regular language or not. Suppose karo you are having a language L and you are able to find out the corresponding grammar. You are able to find out the corresponding grammar and this grammar contains the productions of the form. किस टाइप के productions है इसके पास? Either in the form of a left linear grammar, A tends to AA, or you can say AA, or A tends to terminal. Either it is producing terminal followed by a variable, or variable followed by terminal, or a single terminal. Then on the basis of that we can say that the given language is a regular language. क्या कह सकते हैं हम? We can say that
the given language is a regular language. So these are the 4 key points जिनके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो द गिवन लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तेजस एंड एवरीबॉडी एल्स. सो ये देखिए, क्योंकि ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो रेगुलर सेशन है उन सब उसमें हम इन सभी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आपके पास रेगुलर है, आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब आप कहेंगे रेगुलर लैंग्वेज है. फाइनाइट ऑटोमेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन यू विल से इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज. पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव to check the given language is not regular. And in case of last, if you are able to convert a language into a grammar and the productions are of the form the terminal followed by a variable or variable followed by a terminal, या single terminal on the right hand side, then you can say that the given language is the regular language. So this is the way of identifying a regular language. इसके एग्जाम्पल हम साथ साथ करेंगे. Now let us understand the key points to identify the given language is a context free language. किसकी बात करेंगे? द गिवन लैंग्वेज इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. लेकिन रेगुलर लैंग्वेजेस के केस में अगर कहीं पे यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस आपने स्टडी की हुई है, देखिए फिफ्थ में आपने जो प्रॉपर्टीज स्टडी की हुई है, आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज स्टडी की हुई है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, वो सारी एप्लीकेबल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द यूनियन रेगुलरिटी किस किस में? द यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज आल्सो रेगुलर. Concatenation of two regular languages is also a regular. Concatenation of two regular languages is also regular. Closure of a regular language is also a regular. Intersection of two regular languages is also regular. Complementation of two regular languages is also regular. Complementation. And in the same way, reversal, the reverse of a regular language, you can say reversal property. The reverse of a regular language is also regular. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप किस में स्टडी करते हैं? इन द रेगुलरिटी में. और साथ साथ आपने देखा होगा होमोजीनियस प्रॉपर्टी. क्या था आपका? होमोजीनियस. इन सभी प्रॉपर्टीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. होमोजीनियस. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस. so we must be careful about using these properties as well. Now let us understand the second way, या second type of language, that is identification of context free language. किसकी बात कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. कैसे आप आइडेंटिफाई करें? ठीक है, टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वी हैव वेरियस वेज. द फर्स्ट वे क्या है? सपोज करो यू आर हैविंग ए लैंग्वेज एल, you are having a language L and you are able to find out the grammar corresponding to this language G having the productions. किस टाइप के productions है उसके अंदर? having the productions of the form A tends to alpha. किस form के productions है? A tends to alpha, where A belongs to a variable and alpha is a group of variable and terminal star. ये इन सभी का terminal है. But always keep it in your mind कि आपने जो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में स्टडी किया हुआ रेगुलर लैंग्वेज is a subset of, you can say it is a smaller set, then there is a context free language, then there is a concept of context sensitive language, or we also call it as, every context sensitive language को हम किसी कैटेगरी में रखते हैं, we also call it as a recursive language. क्या कहते हैं? recursive language. And above all there is a recursive enumerable language. This REL is known as recursive enumerable language. तो आपने देखा कि सपोज करो आपके पास लैंग्वेज एल है एंड जो ग्रामर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट ग्रामर is having the productions of the form A tends to alpha. So alpha can be epsilon because it is a clean star. This is the one way of identifying a context free language. Language or grammar basically. So suppose karo you are having a language L and you are able to draw or construct a PDA corresponding to it. आप इस लैंग्वेज के corresponding क्या बना सकते हो? PDA. PDA stands for push down automata. क्या बोलेंगे आप? You will call it as push down automata. आप इसे क्या बोलेंगे? यू विल कॉल इट एज पुश डाउन ऑटोमेटा. तब आप क्या कह सकते हैं? द गिवन लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्या बोलेंगे आप? कि जैसे इस केस में भी क्या थी? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी, एंड इफ यू आर एबल टू ड्रॉ अ पीडीए करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज, इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. एंड द थर्ड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग की कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है? थर्ड वे देखिए, इस केस में आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में टू टाइप की कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, लाइक डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. तो वही है कि the languages, the CFL accepted by deterministic PDA are known as deterministic context free language, and the CFLs are accepted by non-deterministic PDA are known as non-deterministic context free language. Now, what is the another way of recognizing whether the given language is a context free language? कैसे करेंगे? देखिए, suppose करो you are having L, you are having a language
एंड देयर इज ओनली वन कंपेरिजन. कितना कंपेरिजन है? देयर इज ओनली वन कंपेरिजन. जिसकी बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन कंपेरिजन. कंपेरिजन और यू कैन कॉल मैचिंग. अब ये वन कंपैरिजन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ये वन कंपैरिजन क्या रिप्रेजेंट करता है कि सपोज करो आपके पास एक लैंग्वेज है, L इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n. क्या है? इट इज रिप्रेजेंटिंग से a टू द पावर n b टू द पावर n b टू द पावर n एंड से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्या रिप्रेजेंट करता है? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इस केस में क्या होगा? देखिए दिस लैंग्वेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ a एंड इक्वल नंबर ऑफ b provided number of a is followed by number of b's, और you can say equal number of a is followed by equal number of b. तो आप क्या करेंगे? आप इस केस में जो a टाइप के सिंबल है आप पुश करेंगे. किस में पुश करेंगे? स्टैक में. बिकॉज यू विल इंप्लीमेंट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ए पीडीए. किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए पीडीए. तो इस केस में आप इसको पुश करेंगे इन द स्टैक में, और जो बी टाइप के सिंबल है उससे क्या करेंगे? यू विल परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन. क्या करेंगे? पॉप करेंगे. इसका मतलब एवरी टाइम यू नीड टू कंपेयर बी बाई ए. बी और ए को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा. दैट्स तभी आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि द गिवन लैंग्वेज इज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? I hope Tejas it is clear to you and everybody else. So there is one comparison required. How many comparisons are required? One comparison is required. कितना required है? One comparison is required. Tejas, is it clear to you? So these are the three different ways of identifying a given language is a context free language or not. But be careful. अगर आपके पास, क्योंकि each regular language is also a context free language, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज के इफ अ लैंग्वेज कंटेन द प्रोडक्शन या ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज कंटेन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर वो टर्मिनल फॉलोड बाय ए वेरिएबल और वेरिएबल फॉलोड बाय ए टर्मिनल या सिंगल टर्मिनल है, तब आप उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं कहेंगे. यू विल कॉल दिस लैंग्वेज एज रेगुलर लैंग्वेज. और इसमें अगर एक भी कोई प्रोडक्शन आउट ऑफ दिस प्रोडक्शन आ जाता है, देन यू विल कॉल इट एज ए इवन ए टेंड्स टू एप्सिलॉन इज आल्सो अलाउड. क्योंकि एप्सिलॉन को भी क्या करते हैं? सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन. क्योंकि इन केस ऑफ इनिशियल स्टेट इज ए फाइनल स्टेट, तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए टेंड्स टू एप्सिलॉन. वो भी आएगा, लेकिन ये ए टेंड्स टू एप्सिलॉन नहीं होगा. इट विल बी एस टेंड्स टू एप्सिलॉन. a start symbol can be epsilon because initial state can be a final state. तो जब initial state final state होगी, when initial state is a final state, then s can be epsilon provided s appearing on the right hand side of the string. किस केस में एप्लीकेबल है? when s is appearing on the right hand side of the production. ये क्लियर है? So basically you need to remember these three concepts to identify a context free language. I hope this is clear to everybody. ये एक revision है basically. It is a kind of revision for all of you. So now let us understand the third way. That is, third is the context sensitive language. The third is a context sensitive language. किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about context sensitive language. और हाँ, साथ साथ अगर context free languages की हम बात करते हैं, तो don't forget the properties of CFL. क्या है जी? properties of CFL. और प्रॉपर्टीज ऑफ CFL में अगर आप देखेंगे, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर. किस किस में क्लोज्ड है? दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लोजर. कॉन्केटिनेशन एंड क्लोजर, इन्हीं के अंडर में ये क्या है? दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लोजर. दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके साथ साथ एक इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है रेगुलरिटी. क्या बोलते हैं? रेगुलरिटी. और रेगुलरिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? कि सपोज करो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर एप्लीकेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ CFL. क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ CFL. सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द identification of, this is basically an identification of context sensitive language. किसकी बात कर रहे हैं जी? identification of context sensitive language. So what are the ways of identifying whether a given language is context sensitive or not? The first way, suppose you are having a language L. क्या है? आपके पास एक language L है, and you are able to write a grammar corresponding to it, and this grammar is having the productions of the form. किस टाइप के productions है इसमें? कि like say the productions are like this one, A, and say you are having a production like B tends to B, and the production can be like say AB tends to say BC, something sort of that, या BA.
वो डिपेंड करता है। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में व्हेन अगर मैं ए की बात करूं, सो दिस स्मॉल ए इज द लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट कैपिटल ए। ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। इन द सेम वे आप जैसे ए के लिए बी क्या हो जाएगा? राइट कॉन्टेक्स्ट करस्पॉन्डिंग टू ए, बी इज राइट कॉन्टेक्स्ट, बी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। इट मीन देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर बी अगर मैं बी के रेफरेंस में बात करूं तो ए क्या हो जाएगा? इन रेफरेंस ऑफ बी ए इज लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, ए इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट। तो इस केस में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई वेरिएबल के साथ टर्मिनल एग्जिस्ट करेगा या उसके साथ वेरिएबल भी एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इज इट क्लियर? सो व्हेन अ ग्रामर कंटेन्स द प्रोटेक्शन ऑफ दिस फॉर्म, देन यू विल कॉल इट एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसको? यू विल कॉल इट एज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। द सेकंड वे of identifying whether the given language is context sensitive language or not, कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बेसिस पर आप कहते हैं, सपोज करो आपके पास एक लैंग्वेज एल है, क्या है? यू आर हैविंग ए लैंग्वेज एल एंड इट कंटेन्स टू और मोर कंपेरिजंस। कितने कंपेरिजंस की रिक्वायर होती है? इट रिक्वायर्स टू और मोर कंपेरिजंस। किसकी बात हो रही है? टू और मोर कंपेरिजंस। अब ये टू और मोर कंपेरिजंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ अ लैंग्वेज कंटेन्स टू और मोर कंपेरिजंस, then we will call it as a context sensitive language। क्या बोलेंगे इसको? we will call it as a context sensitive language। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये context sensitive language है? इसकी बात कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये context sensitive language है? तो देखिए इसको समझिए। सपोज करो आई एम हैविंग ए लैंग्वेज, so the language is l is equal to a to the power n, b to the power n, c to the power n and से n is greater than equal to 1। अब आप क्या करना है इस केस में? देखिए अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेरिजन क्या कहता है जी? इट कंटेन्स equal number of a's followed by equal number of b's followed by equal number of c's। so there are two type of comparison। क्या है कि सपोज करो आपने क्या किया, a टाइप के सिंबल्स हैं तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो b के साथ। so one comparison is required here, then you can compare c with b, another comparison is required, but it cannot be done with the help of pda। why it cannot be done with the help of pda? suppose you are pushing a type of symbol onto this type, आपने b टाइप से उसको क्या कर लिया? पॉप कर लिया। अब c क्या करेगा इस केस में? what the c will do? सो वी कैन नॉट डू विद पीडीए। इसको हम पीडीए की हेल्प से नहीं कर सकते। पीडीए कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर ई। लेकिन इसके लिए आप टू स्टैक पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट टू स्टैक पीडीए का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। यू कैन कंस्ट्रक्ट टू स्टैक पीडीए। उसमें क्या होगा कि ए टाइप के सिंबल को आप उसमें डाल देंगे, वन स्टैक में डाल देंगे, और बी टाइप के सिंबल को दूसरे स्टैक में डाल देंगे। जैसे सी आएगा वो एक एक को पॉप कर लेगा फ्रॉम बोथ दी स्टैक्स। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। बट हम व्हेन वी टॉक अबाउट ए पीडीए, सो पीडीए मीन डिफॉल्ट मीन सिंगल स्टैक पीडीए। इसकी बात करते हैं, वी कॉल इट आ सिंगल स्टैक पीडीए। इसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सिंगल स्टैक पीडीए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो यहाँ पे टोटल कितने कंपेरिजंस रिक्वायर्ड है? टू कंपेरिजंस आर रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लेकिन इसी के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लिया आप ए एन बी एन सी एन डी एन कर दें, तो उस केस में आप पीडीए डिजाइन कर सकते हैं। मान लिया आपके पास है, देखिए कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं कहता हूं जी मेरे पास एक लैंग्वेज है, हु इज ऑन द लाइन? प्लीज पिंग इनटू द चैट बॉक्स ऋषभ, विश्वजीत, आरजे, हु आर ऑन द लाइन अदर देन तेजस। सो सपोज करो आई एम हैविंग अनदर लैंग्वेज, मेरे पास एक और लैंग्वेज है। क्योंकि देखिए मैं आज जो अभी गेट की प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड कराऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग ए लैंग्वेज, आपको ये बताना है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। से ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन, सी टू दी पावर एन, डी टू दी पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई इसमें मैंने यहाँ पे ऐसे कंपेयर किया। क्यों मैंने कंपेरिजन रिप्रेजेंट किया? क्योंकि हम सिंगल स्टैक के थ्रू इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो पीडीए वर्क करता है। पीडीए वर्क्स टिल हियर व्हेन देयर इज वन कंपैरिजन। अगर एक से ज्यादा कंपैरिजन होगा देन पीडीए विल नॉट वर्क फॉर इट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देन वी नीड अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसके लिए हम क्या डिजाइन करते हैं? वी यूज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सिलेबस। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सपोज करो मेरे पास ये लैंग्वेज है ए एन बी एन सी एन डी एन, तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ सीएफएल और ए सीएसएल। तो आप कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे? देखिए टू कैटेगराइज दिस लैंग्वेज कैसे करेंगे बताइए? You just tell me whether it is a context free, context sensitive or Tejas and everybody else please tell me ये लैंग्वेज किसको बिलोंग करती है? How many comparisons are required here? देखिए all of them are varying with the same variable। इसके साथ वेरी कर रहे हैं, they are varying with the same variable।
So all the strings generated contains equal number of A followed by equal number of B followed by equal number of C followed by equal number of D. बताइए किस कैटेगरी में आएगी? Everybody. How many comparisons are required here? Actually chat is on my right hand side, that's why I'm watching the chat. तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे कितने कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होगी? वन कंपैरिजन, देन सेकंड कंपैरिजन एंड देन द थर्ड कंपैरिजन. तो ये टू कंपैरिजन नहीं, बेसिकली आई विल राइट इट एज 1 1 1. सो टोटल ऑल टुगेदर हाउ मेनी कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड? थ्री कंपैरिजंस आर रिक्वायर्ड. कितने रिक्वायर्ड है? थ्री. सो दिस इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. किसकी कैटेगरी में? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. दिस इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, आपके पास सपोज करो आपने ए टाइप के सिंबल को पुश कर दिया, लेकिन आपको इक्वालिटी चेक करनी. मान लिया मेरे पास एक स्ट्रिंग है डबल ए डबल बी 4C. सपोज करो मेरे पास क्या है? 4C है एंड 4D है. 1 2 3 4 एंड से आई एम हैविंग 4D. कितने दी? 4D. क्या पहली बात तो ये स्ट्रिंग इससे जनरेट ही नहीं होगी, इससे स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि दिस लैंग्वेज विल जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी एंड इक्वल नंबर ऑफ सी. So basically, it also belongs to the category of context sensitive language. I hope this is clear to everybody. लेकिन देखिए अगर मैं इसी लैंग्वेज में एक मैनिपुलेशन कर दूं, देखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर मैं यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कर देता हूँ, सपोज करो मैंने कंसीडर कर लिया ए एन बी एन और से सी एम एंड डी एम. मैंने क्या कर लिया? ए एन बी एन और सी एम और डी एम कर लिया. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड m इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब बताइए ये लैंग्वेज किस कैटेगरी में आएगी? ये लैंग्वेज किस कैटेगरी में आएगी? देखिए हेयर a एंड b आर वेरिंग विद m, c एंड d आर वेरिंग विद m. तो ये किस कैटेगरी में आएगी? देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आप इसको पीडीए के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, आपने क्योंकि ए और बी सेम क्वांटिटी में, आपने ए टाइप के सिंबल को क्या कर दिया? पुश कर दिया. एंड बी टाइप के सिंबल से आपने क्या कर लिया? उसको पॉप कर लिया. यहाँ तक का वर्क फिनिश हो गया, क्योंकि देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वन कंपेरिजन. लेकिन वन कंपेरिजन में जब आपने इसको पॉप कर लिया तो आपकी स्टैक क्या हो गई? एम्प्टी. नाउ द वर्क ऑफ सीएम एंड डीएम स्टार्टेड एंड सीएम एंड डीएम आर वेरिंग विद एम. ये किसके साथ वेरी कर रहे हैं? दे आर वेरिंग विद एम. तो इस केस में आप क्या करेंगे? सी टाइप के सिंबल को आप अगेन पुश करेंगे और इसको पॉप कर लेंगे डी टाइप के सिंबल से. किससे कर लेंगे? पॉप कर लेंगे डी टाइप के सिंबल से. सो इन दिस केस you will say that it means you can implement this language with the help of a PDA. आप इसके लिए PDA बना सकते हैं. देखिए when all the symbols are not varying with same variable, in that case there is a possibility of constructing a PDA. So when you are able to construct a PDA for a language, then you can say that sir the given language is a context free language. क्या कह सकते हैं आप? The given language is a context free language. I hope this is clear to everybody. Now दिस इज वन वे. अभी मैं इसकी गेट की पीवाईक्यूज कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. से द थर्ड पॉसिबिलिटी, से यू आर हैविंग ए लैंग्वेज एल एंड यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट ए एलबीए. एलबीए स्टैंड फॉर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. किसकी बात करते हैं? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. if you are able to construct the LBA for the given language, then you can say that the given language is context sensitive language. क्या है? The given language is a context sensitive language. So these are the ways of identifying रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज. किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की. देखिए मैंने स्पेसिफिकली एक ऐसा एग्जांपल भी कंसीडर किया है which does not belong to the context free language. I can also consider, let me consider one more example जो ना आपको देखने में लगेगा ना तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री को बिलोंग करेगा ना वो बिलोंग करेगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को. आइए देखिए वन मोर एग्जांपल. say I am having a language L is equal to a to the power m, b to the power n, c to the power p, where m is greater than equal to 0 and say m is greater than equal to 0, n is greater than equal to say 1 and say p is greater than equal to 0. मेरे पास ये लैंग्वेज है एंड यू हैव टू टेल मी कि ये किस टाइप की लैंग्वेज है. इसके ऑप्शंस हैं. इट इज अ रेगुलर लैंग्वेज, सेकंड है इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड से ऑप्शन सी है इट इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड से ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस. आपने मेंशन कर दिया ऑल ऑफ दिस. क्या कर दिया आपने? ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस कर दो, इट्स अप टू. सभी लोग इवैल्यूएट करें. कैसे इवैल्यूएट करेंगे? देखिए
मैंने आपको बताया कि रेगुलरिटी चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मैं चेक करता हूं कि वेदर द गिवन लैंग्वेज इज द रेगुलर लैंग्वेज और नॉट। तो इसकी रेगुलरिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए हाउ टू चेक द रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी को चेक करने के लिए देखिए ए इज वेरिंग विद एम विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b is varying with n which is greater than equal to 1, and c is varying with p which is greater than 0, which is greater than equal to 0. Now you can understand the concept. देखिए this is the concatenation of a b and c, भाई a to the power m, b to the power n and c to the power p का क्या है, ये concatenation है. It is a concatenation where a is varying with m, b is varying with n and c is varying with p. So you can easily represent this language as, देखिए a to the power greater than equal to 0 है, so you can write it as a closer. 0 किस केस में आता है, in case of closer, क्योंकि it किस तब power of the zero power of any symbol represent epsilon. In the same way, say you are having n greater than equal to 1, क्या है n greater than equal to 1, so you can write it as b का positive closer, क्योंकि इससे जो फर्स्ट सिंबल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, b होगा. भाई n की वैल्यू 1 रखेंगे, b टू द पावर 1 क्या मिलेगा, b. सो वो किस केस में आता है, इट कम्स इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लोजर. किस केस में आता है, पॉजिटिव क्लोजर के केस में. एंड c इज वेरिंग विद p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यू विल राइट इट एज c क्लोजर. क्या लिखेंगे आप, यू विल राइट इट एज c क्लोजर. सो यू आर एबल टू राइट दिस लैंग्वेज in the form of a regular expression. So what you will say, sir, the given language is a regular language. Given language किसकी कैटेगरी में, it is in the case of regular language. Tejas and everybody, is it clear to you? Now you can understand it more clearly. आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाँ मैं क्लोजर के बीच बीच में केस में आपको बता देता हूँ. यूजुअली स्टूडेंट यूज्ड टू बी कंफ्यूज, से यू आर हैविंग ए क्लोजर. सो व्हाट द ए क्लोजर रिप्रेजेंट, से इट इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड से ए टू द पावर आई. तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो यू विल गेट ए टू द पावर 0, a1, a स्क्वायर, a क्यूब, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. आपने स्टडी किया हुआ है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स, आपने स्टडी किया हुआ है पावर 0 ऑफ एनी सिंबल रिप्रेजेंट 1. क्या रिप्रेजेंट करता है, 1. while in case of automata, the power of any zero power of any symbol represent empty input. empty input को हम एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लैम्डा से भी. बट थ्रू आउट वी आर स्टडिंग इट एज एन एप्सिलॉन. कैसे स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट एज एन एप्सिलॉन. तो आपने देखा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज एप्सिलॉन एंड से ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए क्लोजर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्लोजर. तो अगर आप इसको फाइनाइट ऑटोमेटिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, एप्सिलॉन इज द मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग. व्हेन एप्सिलॉन इज द फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेटेड बाय ए लैंग्वेज, देन what will happen, the initial state will be a final state and closure used to be represented with the help of a self loop. तो आप इसका finite automata अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, so what will the finite automata in this case, you will say sir initial state is the final state and there is a loop of a. क्या हो जाएगा, there will be a loop of a. ये हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, but it is a doubt session basically. So now let us understand, you are having a positive closure. क्या है, positive closure. And positive closure is represented as a union of I greater than equal to 1 a to the power I. किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a to the power I से. तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, it will represent like a to the power 1 a square, a cube and so on. ये इससे रिप्रेजेंट होगा. और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इज a positive closure. What is the minimum length string, minimum length string is a in this case. इसमें मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होती है, a. तो जब आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को डालेंगे इन बिटवीन द स्टेट, ए इज एक्सेप्टेड एंड देयर कैन बी ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ ए, सो यू विल राइट द सेल्फ लूप ऑफ ए. So this is the finite automata representation for a positive closure. I hope this is clear to everybody because we are learning ABC. मतलब हम बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर रहे हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है. चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जो गेट एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड पूछा गया है एंड दैट प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन गेट 2019. क्या है प्रॉब्लम, आइए समझते हैं. द प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन गेट 2019. व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखिए दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2019. Every year there is a question related to the identification of a language. So first, which one of the following language, which one of the following language, so which one of the following language, which one of the following language over sigma is equal to, over sigma is equal to a comma b is not context free, is not
कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसकी बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। ऑप्शन ए, देखिए क्वेश्चन को आप यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द एग्जामिनेशन वेदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ए पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस. In this case there is a not, so the question is asked in negative sense, be careful. So the given options are, say, a to the power n, b to the power I, b to the power I, where I belongs to, I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? It can be n, it can be 3n और it can be 5n. क्या क्या हो सकती है? n, 3n and 5n, where n is greater than equal to 0. n की वैल्यू क्या है? It is greater than equal to 0. Option B. Option B is w a to the power n, w to the power r and say b to the power n. क्या है? b to the power n है, where w belongs to ab closer. क्या है? ab closer है and comma n is greater than equal to 0. ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज से डब्ल्यू डब्ल्यू आर. क्या है जी? डब्ल्यू डब्ल्यू आर है, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी क्लोजर. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी क्लोजर. एंड ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज रिप्रेजेंटिंग से डब्ल्यू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, डब्ल्यू टू द पावर आर, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी क्लोजर. किसको बिलोंग करता है जी? ए बी क्लोजर को बिलोंग करता है एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सभी लोग सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को एंड लेट मी नो योर आंसर. प्लीज मार्क इट इनटू द चैट बॉक्स. आप सभी लोग चैट बॉक्स में इसको मार्क करें. एवरीबडी मार्क द आंसर इन द चैट बॉक्स. एवरीबडी, सभी लोग अपना अपना आंसर मार्क करें. सो देखिए, जब व्हेन यू सॉल्व द गेट प्रॉब्लम, बी केयरफुल whether the question is asked in a positive sense or a negative sense. You have to identify the not context free language. And let me tell you very clearly, the incorrect options are the opportunity for the upcoming exam. ये आप समझ लेना, because in the gate examination concept never change and questions almost never repeat. उसकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. अगर आप देखेंगे तो ये जो जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड या यू हैव ऑलरेडी डन these all these options, but their representation is different over here. यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? डिफरेंट है. ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आइए देखिए, इसको समझते हैं. अच्छा, चैट गायब हो गई. ओह, चैट भी देखना जरूरी है. आइए देखते हैं. मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे पोल का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सो लेट अस स्टार्ट ऑप्शन ए. डिस्कस करते हैं, ऑप्शन ए से शुरू करते हैं. व्हाट इज गिवन इन ऑप्शन ए? हमें फाइंड आउट करना विच वन इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट फ्री. इन द अपकमिंग एग्जाम द सिमिलर प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड which of the following languages are context free, because from 2021 onward there is a provision in the gate examination to mark the multiple correct answers. ठीक है? Only Tejas is responding, rest of them are listening. No problem. Let us understand with the option A. What is given over here? A is varying with n, which is greater than equal to 0, and B is varying with I. I की वैल्यू क्या हो सकती है? I की वैल्यू 1 हो सकती है, I can be 3n और I can be 5n. There are three different options for the value of I. So what can be the values? When I is equal to n, your language will be a to the power n, b to the power n. When I is equal to 3n, your language will be a to the power n, b to the power 3n. क्या होगी? a to the power n, b to the power 3n. And suppose करो you are having, when you are having the value of I as 5n, तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो जाएगी? a to the power n and b to the power 5n. क्या हो जाएगी? b to the power 5n. It is clear to everybody? और इसकी कंडीशन तो ऑलरेडी गिवन है, विच इज आई एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इस केस में आप देखिए, इन दिस केस ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज वन कंपैरिजन रिक्वायर्ड. हाउ मेनी कंपैरिजन रिक्वायर्ड? यू नीड वन कंपैरिजन ओनली. जब आप पीडीए कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ए पीडीए, देखिए देयर इज सिंगल 1 एंड 3b. सो इसका मतलब क्या हुआ? विद द हेल्प ऑफ 3b यू हैव टू पॉप सिंगल ए. मान लिया ए को आपने पुश कर दिया, विद द हेल्प ऑफ 3b यू हैव टू पॉप ए सिंगल एलिमेंट. बट 3b की हेल्प से एट ए टाइम आप बी को पॉप नहीं कर, आई मीन ए को पॉप नहीं कर सकते. सो इन दैट केस आप क्या करते हो? आप डिले लूप लगा देते हो या साइकिल लगा देते हो. मान लिया आपके पास ये स्ट्रिंग है ए ट्रिपल बी, तो आप क्या करोगे? इन दो स्टेट को आप यूज करोगे इन अ साइकिल. इससे क्या होगा? सिर्फ हमें क्या करना है? उसको डिले करना है, जिससे कि हमारा थर्ड बी आ जाए. इसको आप साइकिल में डाल दोगे जब आप पीडीए डिजाइनिंग करते हो, और लास्ट जो थर्ड बी आएगा उससे क्या कर लोगे? इसको पॉप कर लोगे. देयर विल बी ए साइकिल एंड यू कैन कॉल इट एज ए डिले लूप. ठीक है? और फिर बी से क्या कर लोगे? आप ए पॉप कर लोगे. सो इन दिस केस यू आर एबल टू डिजाइन ए पीडीए. सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. दिस इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज.
एंड बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सो यू आर हैविंग ए एंड से यू आर हैविंग 5b, हाउ मेनी बीज आर देयर, सो यू आर हैविंग 5b. सो फॉर द 4b, 4b को हम किस में डाल देंगे, वी विल पुट देम इनटू अ साइकिल और इनटू अ डिले लूप. किस में डाल देंगे जी, आप इसको एक तरीके से स्पेंड कर दो, आप इनको साइकिल्स में स्पेंड कर दो, इन 4b को खर्च कर दो एक तरीके से. और जो लास्ट वाला फिफ्थ आएगा उससे क्या कर देंगे, आप ए को पॉप कर लेंगे. क्या कर लेंगे, आप ए को पॉप कर लेंगे. सो इन दिस केस दिस लैंग्वेज इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ये भी क्या है, इट इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. आप इनके प्रोडक्शंस भी बना सकते हैं. आप इनके प्रोडक्शन अगर आप बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिए एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके प्रोडक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, पीडीए तो है ही है, आप इनके प्रोडक्शंस भी बना सकते हैं. सो व्हाट कैन बी द प्रोडक्शंस, इट विल बी ए एस बी ऑब्लिक एप्सिलॉन. व्हाई, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस केस में अगर आप प्रोडक्शन बनाएंगे, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्शंस, एस टेंड्स टू ए एस, नंबर ऑफ बी की क्वांटिटी क्या 3 टाइम्स है, तो यू विल राइट इट एज ट्रिपल बी. क्या लिखोगे, ट्रिपल बी. और क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, एप्सिलॉन 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 हो जाएगा. सो दिस विल बी द ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज. और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर क्या होगी, यहाँ पे क्या 5b है, तो दिस यू कैन राइट ए रिकर्सिव प्रोडक्शन एज a s and there will be 5b. how many b, 5b. and क्योंकि because n is greater than equal to 0, so the first product value will be epsilon. So all these productions belongs to the context free language. किसको belong करते हैं, context free grammar को belong करते हैं. and the context free grammar को belong करते हैं और किसके प्रोडक्शन है, context free language के. and we are very much aware that the union of context free languages is also context free. अगर मैं इनका यूनियन करता हूं तो वो भी क्या होगा, that will also be a context free language. so ऑप्शन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, context free language. देखिए हमें बताना है which one is not context free. हमें ये बताना है कौन सा context free नहीं है. Are you getting my point or not? We have to explain which one is not context free. Now let us move towards the option B. आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं. किसको चेक करते हैं, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी तो हमें मिला कॉन्टेक्स्ट फ्री. नाउ लेट अस चेक ऑप्शन बी. एंड व्हाट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू आर बी एन. ये है डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू आर बी एन, वेयर डब्ल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी क्लोजर. देखिए ए बी क्लोजर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी का क्लोजर और ए यूनियन बी क्लोजर. एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. See, we can try it with the help of a PDA. If we are not able to design a PDA for the given language, then we can say that it is not a context free language. क्या है ये, context free नहीं है. अब इस केस में देखिए, आपने देखा कि A and B are varying with the same symbol. W R representing the reverse of W. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, WWR बेसिकली रिलेटेड टू द इवन पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट. ये किससे रिलेटेड है, इवन पैलिंड्रोम से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू द इवन पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट. इस केस में आप देखिए कैसे चीजें वर्क करेंगे, हाउ दे विल वर्क. तो इस केस में देखिए मैं क्या कहता हूं, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो स्ट्रिंग का सीक्वेंस है, द स्ट्रिंग विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. तो अगर आप स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हो, मान लिया आपके पास डब्ल्यू आता है, भाई आपके पास एक स्टैक है, जब आप पीडीए बनाते हो तो पीडीए में आप क्या करते हो, स्टैक के अंदर पुश करते हो. तो इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन द स्टैक सपोज करो जेड नोट है, आपने डब्ल्यू को पुश किया, आपने क्या कर दिया, डब्ल्यू को पुश कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए वी कैन नॉट पॉप द डब्ल्यू एलिमेंट विद एन. देखिए डब्ल्यू को हम एन से पॉप नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, बट ए एन बी एन आर द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू डब्ल्यू आर द सेम काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स. डब्ल्यू डब्ल्यू आर द सेम काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स. तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने डब्ल्यू को पुश कर दिया और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन पुश ए टू द पावर एन. मैंने किसको कर दिया जी, ए टू द पावर एन को भी पुश कर दिया. अब बात आती है कि क्या मैं ए की पावर एन को डब्ल्यू टू द पावर आर से पॉप कर सकता हूँ, कैन आई पॉप इट. देखिए आप समझिए कि क्या मैं इसको डब्ल्यू की पावर आर से पॉप कर सकता हूँ, नो इट इज नॉट पॉसिबल. देखिए डब्ल्यू आर से आप डब्ल्यू को पॉप कर सकते हो विच इज नेक्स्ट टू टॉप मोस्ट एलिमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, आपका पीडीए होल्ड कर जाएगा, मतलब यू आर नॉट एबल टू डिजाइन द पीडीए फॉर इट. आप इसके लिए पीडीए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि डब्ल्यू अगर आप पुश कर रहे हैं तो देयर शुड बी डब्ल्यू आर जो इसको पॉप करे. डब्ल्यू आर क्या करे, उसको पॉप करे. और अगर ए एन शुरू होता है तो उसको बी एन पॉप करे. इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ पीडीए, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. पीडीए कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड.
सो इट इज नॉट अ CFL, इट इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है. सो आपका जो ऑप्शन बी है, बेसिकली योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट इज नॉट अ CFL, it is not a context free language. Clear है? But in the coming examination such type of problem can be asked कि which of the following are context free languages. So now let us see the option C. किसकी बात कर रहे हैं? Let us see the option C. ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं जी. ऑप्शन सी क्या कहता है? So you are having a language WWR where W belongs to AB closure. W किसको belong करता है? W belongs to AB closure. So what it will represent? W ने बताया जी W is a AB closure. W क्या है? W इज अ AB क्लोजर. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सपोज करो W, देखिए AB क्लोजर को जब आप एक्सपेंड करेंगे, व्हेन यू विल एक्सपेंड AB क्लोजर, AB क्लोजर को आप एक्सपेंड करेंगे और यू कैन राइट इट एज A प्लस B का क्लोजर, और यू कैन राइट इट एज A यूनियन B क्लोजर. तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे देन यू विल गेट एप्सिलॉन A B, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू A B B A B B, and the combination of three like triple A double A B and so on. All these things you can represent them. Is it clear to everybody? Now let us see, you are having W is equal to epsilon. WR is the reverse of W. If W is an epsilon, W reverse will also be an epsilon, क्योंकि empty का reverse भी empty होगा. So what will be the first string generated? This is WWR, that is epsilon. Epsilon is equal to epsilon. This is the first string generated. This it will represent the terminating production, या base condition of the production. Now let us understand. ये हो गया. नाउ सपोज करो देयर विल बी टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद वे और स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी. भाई टू टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी इससे, जो कि हम इस इवन पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करेंगे. बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द इवन लेंथ पैलिंड्रोम. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवन लेंथ पैलिंड्रोम. ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम है. तो जब आप स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए और स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी कंसीडर करेंगे तो इसमें किस किस टाइप के प्रोडक्शन आएंगे? देखिए सपोज करो मैं कहता हूँ जी W मेरे पास A है, तो W की पार आर बी क्या होगा? A. सो व्हाट विल बी द स्ट्रिंग? डबल A. व्हेन सपोज करो W इज B एंड W टू द पावर आर बी क्या होगा? रिवर्स भी क्या होगा? B. तो स्ट्रिंग जनरेटेड विल बी BB. क्या होगी स्ट्रिंग जी? BB. नाउ सपोज करो यू आर हैविंग ए स्ट्रिंग W इज इक्वल टू AB and WR is equal to BA. So what will be the string generated? WWR ABBA. So इन सब की लेंथ क्या है? देखिए इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ क्या है? 4 है, और इसकी लेंथ क्या है? 0. एप्सिलॉन मींस 0 लेंथ. In the same way, suppose करो W is equal to BA, so WR will be AB. So what will be the string generated? That will be BAAB. क्या represent करेगा? BAAB, और उसकी लेंथ भी कितनी है? 4. So basically this is the even length palindrome. So you can write the production like this: S tends to ASA oblique BSB oblique epsilon. So you are able, this language you are able to write a context free grammar. So this is a context free grammar, hence the given language is a context free language. जो language है, language क्या हो जाएगी? context free language. WWR is a context free language. तो this is a CFL. जो option C है, option C belongs to the category of context free language. You will say sir this is CFL. ये क्या है? CFL है. Now let us understand option D. देखिए option D और B में क्या difference है? जैसे D करेंगे तो आपको एकदम clear हो जाएगा. Now let us understand option D. Let us understand option D. ऑप्शन डी क्या कहता है जी? आपके पास एक लैंग्वेज है W, A टू दी पावर N B टू दी पावर N W टू दी पावर R. क्या W टू दी पावर R है? जिसके अंदर इसमें मेंशन्ड है कि W इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ we will identify whether we are able to construct a PD or not. So let us check it. Suppose करो मैंने A, देखिए मेरे पास सपोज करो ये स्टैक है. Say I am having a stack. This is a stack. इसमें हम क्या कर सकते हैं? दिस इज अ जेड नोड एंड वी विल पुश W ऑन टू द स्टैक. हमने W को पुश कर दिया. देन वी कैन पुश, देखिए हमने पुश किया, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? पुश. ये भी हम क्या कर देंगे? पुश कर देंगे. देन विद द हेल्प ऑफ B वी विल पॉप ऑल A. हम क्या कर देंगे? A को पॉप कर देंगे. तो लास्ट में इसमें क्या बचेगा? B बचेगा. क्या बचेगा? W बचेगा. और लास्ट में जो WR है वो W को क्या कर देगा? पॉप कर देगा. भाई WR क्या करेगा? पॉप कर लेगा W को. ये समझ में आ गया? तो लास्ट वाले का, लास्ट टू का काम पॉप करना है, फर्स्ट टू का काम पुश करना है. मान लिया मेरे पास W आया, W को मैंने पुश कर दिया. क्या कर दिया जी? मैंने W को पुश कर दिया.
इसके बाद a टू द पावर n आया, मैंने a टू द पावर n को भी स्टैक के अंदर पुश कर दिया। से दिस इज z नॉट, दिस इज w, एंड से दिस इज a टू द पावर n, ये वैल्यू क्या a टू द पावर n है, मैंने इसको भी पुश कर दिया, ये भी पुश हुआ, ये भी पुश हुआ। नाउ देयर इज अनदर वेरिएबल विच इज बी, देखिए बी टू दी पावर एन नहीं जाएगा, ये तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें तो आप स्ट्रिंग में एन की वैल्यू 3 ले लेंगे और ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे डब्ल्यू से। आई एम जस्ट आई एम गिविंग ए रिप्रेजेंटेशन, आपको एक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, जनरलाइज फॉर्म अंदर नहीं जाएगी। कीपिंग योर माइंड के सर ऐसे कुछ बता रहे थे, you have to consider a specific string for considering an any value, say you are considering n is equal to 2 and you can consider w is equal to ab, इस तरह से कुछ कंसीडर करके आप एक कंसीडर करेंगे। अब देखिए जब आपके पास b आएगा, ये भी n टाइम अगर कर रहा है, ये भी n टाइम अगर कर रहा है, तो अब आप क्या कर लेंगे, यू विल परफॉर्म ए पॉप ऑपरेशन। जैसे b टाइप के सिंबल से आप a टाइप के सिंबल को पॉप करेंगे, देन द स्टैक कंटेन इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन द स्टैक एंड w। ये क्लियर है सभी को? मतलब लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं कि लॉजिकली यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट ए पीडीए। नाउ देयर विल बी w टू द पावर r, सो विद द हेल्प ऑफ w टू द पावर r यू कैन पॉप w। आप किसको कर सकते हो, w को पॉप कर सकते हो। सो व्हेन यू विल बी एबल टू पॉप w विद द हेल्प ऑफ wr, क्योंकि ये इवन पैलिंड्रोम है, a को पॉप करेगा, से दिस इज z नोट, तो आपकी स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी। दिस इज द इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन द स्टैक। इट मींस यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट ए पीडीए। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो पीडीए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इट मींस द गिवन लैंग्वेज इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आप खाली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के केस में तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो द गिवन लैंग्वेज इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो ऑप्शन डी इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो आपने ओवरऑल देख लिया कि दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग तेजस। ये सभी को क्लियर है? नाउ देयर वाज ए प्रॉब्लम आस्क्ड बाय वन स्टूडेंट, उसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम। आपको आइडेंटिफाई करना है, तेजस एंड एवरीबॉडी, यू हैव टू टेल मी वेदर द गिवन लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। चलिए सभी लोग बताइए। सपोज करो मेरे पास एक लैंग्वेज है, say the given language is L is equal to a to the power m b to the power n, where m is greater than n and n is greater than equal to 0। आपको बताना है आइडेंटिफाई L, आइडेंटिफाई करना आपको L को, whether it is a regular language or it is a context free language or it is a context sensitive language or say option D none of these, say none of these। तो द प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, बेस्ड ऑन द प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, यू हैव टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे समझिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए m क्या ग्रेटर देन n है और n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए इफ m इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन लैंग्वेज है, देखिए जो गिवन लैंग्वेज है उसमें किस किस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी। देखिए जो मैं आपको ये कंपैरिजन तो बताया ही था, आप जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ द लैंग्वेज इज गिवन एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द ग्रामर, you have to find out the set of strings। या if a grammar is given and you have to convert it into the language, you have to identify the set of strings। उसी के बेसिस पे आप लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हैं ग्रामर से और लैंग्वेज से ग्रामर बना सकते हैं। सो इन दिस केस m इज ग्रेटर देन n और n क्या गिवन है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड इट? इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। व्हेन n विल बी 0 तो m की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, n से बड़ी होगी, तो m क्या होगा 1। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब आपके पास n की वैल्यू 0 है तो आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपकी लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, ओनली m बचेगा। आपकी लैंग्वेज में क्या बचेगा, a टू द पावर m, क्या बचेगा, a टू द पावर m। सो इट मींस यू कैन जनरेट, इट मींस यू, और m की वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन n है, तो ये 0 तो हो नहीं सकती, इससे बड़ी ही होगी, इट विल बी हायर देन n। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन इन ईच एंड एवरी केस तो आप ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, वो तो ग्रेटर देन होगी, वो ग्रेटर देन कितनी भी हो सकती है, एंड m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे इस केस में तो n की वैल्यू क्या होगी जी, 0। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n इज 0। इस केस में आपने देखा कि भाई वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 0। तो जब n की वैल्यू 0 है तो आपकी स्ट्रिंग्स में क्या होगा, ओनली ओनली ए सिंबल्स होंगे। किस टाइप के सिंबल्स होंगे, ओनली ए टाइप के सिंबल। अब देखिए एक तो आपकी ये लैंग्वेज आ गई,
देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि जब इसके अंदर ए और बी बराबर होंगे, भाई ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी आएंगी, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी आएंगी व्हेन ए एंड बी आर इक्वल, या हर केस में जब n की वैल्यू 0 है तो a की क्वांटिटी हमेशा, देखिए कोई भी स्ट्रिंग होगी उसमें m मींस द क्वांटिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ a, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ b, इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ b, किसकी क्वांटिटी से बड़ी है, क्वांटिटी ऑफ b से बड़ी। तो देखिए देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस, या तो आप डायरेक्टली इसके प्रोडक्शन लिख लें, या आप क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यू कैन मेक द कॉन्केटिनेशन। मैं कहता हूं जी मैं एक प्रोडक्शन लिखता हूं, से मैंने एस वेरिएबल ले लिया, या सपोज करो मैंने एक वेरिएबल ले लिया S1, क्या ले लिया मैंने, एक S1 वेरिएबल ले लिया, या ऐसे ही ले लो, ये चलो सपोज करो मैंने एक S1 वेरिएबल ले लिया, नो प्रॉब्लम, और मैंने यहां से जनरेट कराया A S1B, क्या जनरेट कराया जी, A S1B, और इस A S1B से क्या कर दिया जी मैंने एप्सिलॉन, ये A और B की इक्वल क्वांटिटी को जनरेट करेगा। देखिए ये प्रोडक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये S1 अभी मेरा स्टार्ट सिंबल नहीं है, माई स्टार्ट सिंबल विल बी S, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये AN और BN देगा मुझे, जिसमें N की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या है जी N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट दिस इज नॉट माई स्टार्ट सिंबल, S1 इज नॉट द स्टार्ट सिंबल, S1 क्या है, मेरा S नहीं है, यू ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे समझना S1 इज नॉट S, वो स्टार्ट सिंबल नहीं है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई अनदर प्रोडक्शन जिसमें खाली A जनरेट होंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ N इज 0, when the value of N is 0 the string contains only A, so when the string contains only A, how you will represent it, you can consider another variable, so you are having S2 variable and you can write it with the help of a S2 variable, say AS2, क्या होगा AS2, AS2 होगा, और देखिए क्योंकि M की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि N की वैल्यू 0 है, तो M की इनिशियल वैल्यू अगर मैं कहूंगा तो आप क्या कहेंगे सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, भाई 1 क्या होगा, क्योंकि M ग्रेटर देन 1 है, N 0 है तो M कैन नॉट बी 0, सो यू कैन राइट इट एज AS2 ऑब्लिक A, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है व्हेन n इज इक्वल टू 0, ये कब रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे आपकी जो लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी दैट विल बी A टू द पावर M, और जहां पे M की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस S2 इज आल्सो नॉट अ स्टार्ट सिंबल, ये S2 भी स्टार्ट सिंबल नहीं है, तो व्हाट विल यू विल डू द कॉन्केटिनेशन ऑफ दीज टू, बेसिकली दिस लैंग्वेज is the not the concatenation, this language is the union of these two languages, इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूनियन जो है वो A टू दी पावर M और B टू दी पावर N है, ये जो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो इन दोनों लैंग्वेजेस का जो यूनियन है, मान लिया ये मेरी L1 है एंड सिर्फ दिस इज L2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है L2, सो L1 यूनियन L2 जो है वो मेरी इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लैंग्वेज को, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है L1 यूनियन, देखिए ये मैं थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है माई L2, देखिए जब N की वैल्यू 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग L2, तो माई L2 इज इक्वल टू A टू दी पावर M वेयर M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब हमें क्या है कि अब देखिए दिस इज द यूनियन, बेसिकली ये जो लैंग्वेज है दिस इज द यूनियन ऑफ A टू दी पावर M, this is the union of A to the power M with condition M greater than equal to 1 and A to the power N B to the power N with a condition of N greater than equal to 0, किसकी कंडीशन है, N greater than equal to 0, ये इन दोनों का यूनियन है, दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, और ये भी गेट एग्जामिनेशन में आ चुका है, ये डिफरेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में गेट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एज ए ऑप्शन, सो व्हाट विल बी योर फाइनल लैंग्वेज, सो दिस इज द यूनियन, सो यूनियन कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस इज नॉट अ यूनियन, दिस इज अ बेसिकली कॉन्केटिनेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए मैंने फिर से वो वर्ड यूज कर लिया, दैट शुड नॉट बी यूज्ड, दिस इज नॉट द यूनियन, बेसिकली दिस इज अ कॉन्केटिनेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज नॉट द यूनियन, दिस इज अ कॉन्केटिनेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ कॉन्केटिनेशन, बेसिकली डॉट आप लगा लीजिए, दिस इज अ कॉन्केटिनेशन, सो दिस इज द कॉन्केटिनेशन, बेसिकली देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज अ कॉन्केटिनेशन, वर्डिंग में गड़बड़ हो गया, it represents the concatenation of A to the power M where M is greater than equal to 1 and A to the power N B to the power N where M is greater than equal to 0, क्लियर है, तभी वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसमें नंबर ऑफ ए की क्वांटिटी ग्रेटर देन है नंबर ऑफ बी की क्वांटिटी से, सो व्हाट विल बी द कॉन्केटिनेशन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, यू कैन राइट देम S टेंड्स टू S1 S2, आपने अब इन दोनों को क्या कर दिया, नाउ यू हैव कॉन्केटिनेटेड देम,
एंड कॉन्केटिनेशन में आप क्या यूज करेंगे? इन द कॉन्केटिनेशन देखिए पहले एक ही क्वांटिटी आ रही है तो पहले S2 लिखेंगे बाद में S1। देखिए बी केयरफुल, बी माइंडफुल, पहले आप S2 लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज में पहले ए आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा S1। तो आपकी जो कॉन्केटिनेटेड लैंग्वेज है, योर कॉन्केटिनेटेड ग्रामर, बेसिकली योर कॉन्केटिनेटेड ग्रामर विल बी S टेंड्स टू S2 S1, जहां पे अब आप S2 S1 के प्रोडक्शन लिख दो। आपका ये जो दोनों प्रोडक्शन है ये क्या होंगे? S1 और S2 के प्रोडक्शन। यू विल राइट एस, देखिए दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। यू कैन आल्सो सॉल्व इट बाय अदर, बाय डिफरेंट, by using different production as well। and there is another production of S2 which is S2 tends to A S2 oblique A, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A S2 oblique A। so this is the final grammar and this grammar contains all the productions of the form A tends to alpha। किस फॉर्म के? A tends to alpha। so the given language is the context free language। आप क्या कहेंगे? सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहेंगे आप? यू विल कॉल इट एज कि सर गिवन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, option A is the correct option। I hope this is clear to everybody। Now let us understand the next one concept। Let us understand one more problem and you have to identify that language। So you are having a language L is equal to, you are having a language A to the power M B to the power N where M is greater than equal to N and N is greater than equal to 0। Identify L। आपको क्या करना है? You have to identify L। whether L is a regular language या ऑप्शन बी L is a context free language and say it is a context sensitive language, और से ऑप्शन डी is none of these। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is representing none of these। So let us understand how to solve this problem। समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये क्लियर है? So what kind of strings it will be generated? Now you have to understand M is greater than or equal to, और n की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो m और n इस केस में क्या हो सकते हैं? व्हेन m इज इक्वल टू 0 n विल आल्सो बी 0। m क्या है? जब 0 तो n भी क्या होगा? 0। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेटेड क्या हो जाएगी? a टू द पावर 0 b टू द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो द फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेटेड इज एप्सिलॉन। विल यू कीप इट इन योर माइंड? द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर जो हमने पहले डिस्कस किया था, बस यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। द कंडीशन विल बी डिफरेंट। नाउ m इज ग्रेटर देन n, या तो m n के बराबर है या ग्रेटर देन है। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस आपकी जो लैंग्वेज है, देखिए इसमें आप समझिए कि मैं कहता हूं जी जब मेरा n इज इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू क्या? 0 है, और m की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। m की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई n की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो ऑटोमेटिकली m क्या हो जाएगा? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन दिस लैंग्वेज योर लैंग्वेज विल बी a का क्लोजर। ये क्या होगा? a का क्लोजर रिप्रेजेंट करेगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं जी a टू द पावर m, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यू कैन राइट इट एज, आप इसे कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट इट एज ए टू द पावर m। मेरा चैट वाला सिस्टम ऑफ हो गया है। आप क्या लिख सकेंगे? ए टू द पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली बात आ गई। ये आ गई सपोज करो L1, इट इज रिप्रेजेंटिंग L1। नाउ यू आर हैविंग अनदर केस। देखिए दिस इज द केस फर्स्ट। मुझे ये पहले वाले केस में भी ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने जल्दी जल्दी में सेशन को कंप्लीट करने के चक्कर में कर दिया। सपोज करो दिस इज केस फर्स्ट एंड से दिस इज केस सेकेंड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केस सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के कॉन्केटिनेशन से आपको ये मिला। इन द सेम वे इस वाली प्रॉब्लम में भी आपको केसेस बना के ऐसे ही करना है। से दिस इज केस सेकेंड व्हेन m इज इक्वल टू n, और दोनों की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस केस में जो आपकी L2 होगी, आपकी L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a टू द पावर n b टू द पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। सपोज करो ये L2 है, तो इसके S1 प्रोडक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? यू विल राइट सर S1 टेंड्स टू A S1, एंड क्योंकि इसकी कंडीशन में 0 है, सो द फर्स्ट प्रोडक्शन या टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन विल बी एप्सिलॉन। आइए इस केस में देखते हैं L2 को। व्हेन वी अंडरस्टैंड L2, तो इसके S2 प्रोडक्शंस क्या क्या होंगे? S2 प्रोडक्शंस विल बी क्या क्या होंगे? S2 प्रोडक्शन यू कैन राइट इट एज ASB ऑब्लिक या AS2 ऑब्लिक एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी भी इनिशियल कंडीशन क्या? 0। नाउ identify the concatenation of these two। so the concatenation of these two will produce the language a to the power m b to the power n। क्या प्रोड्यूस करेगा? a to the power m b to the power n, और वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा। उसको मैं जनरेट करके यहाँ पे दिखा भी दूंगा। कॉन्केटिनेशन से आपको क्या मिलेगा? से s टेंड्स टू s1 s2। क्या मिला जी? s1 s2। s इज द स्टार्ट सिंबल। s क्या आपका स्टार्ट सिंबल है, और
जो S1 के प्रोडक्शंस हैं वो है A S1 ऑब्लिक एप्सिलॉन, और S2 के प्रोडक्शंस क्या A S2 B ऑब्लिक एप्सिलॉन. सो दिस इज द फाइनल ग्रामर. ये क्या है, फाइनल ग्रामर है. एंड ऑल द प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ A2 अल्फा. सो यू कैन से दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. इट मींस द गिवन लैंग्वेज इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. तो ये तो आपको पता चल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये बात समझ में आ गई. लेकिन मैं इसकी आपको स्ट्रिंग जनरेट करके और बताता हूँ. देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो या तो स्ट्रिंग जनरेट कर रही है जिसमें एम और एन दोनों बराबर हैं, या ए की क्वांटिटी ग्रेटर देन है. उसमें ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी जिसमें बी की क्वांटिटी ज्यादा होगी. इससे ये तो पता चल रहा है आपको. देयर विल बी नो स्ट्रिंग. अगर मैं कहता हूं जी क्या ये स्ट्रिंग ए बी बी इज जनरेटेड बाय दिस लैंग्वेज, यू विल से नो. व्हाई? ए की क्वांटिटी 1 है, ए की क्वांटिटी कितनी है 1 है, और बी की क्वांटिटी क्या 2 है. सो दिस स्ट्रिंग कैन नेवर बी जनरेटेड बाय दिस लैंग्वेज. ये सभी को क्लियर है. चलो, और फर्स्ट स्ट्रिंग क्या जनरेटेड है, एप्सिलॉन. अब देखिए इस केस में S1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन. देखिए अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी जितनी स्ट्रिंग्स इस L के थ्रू जनरेटेड हो रही है वो ये ग्रामर भी जनरेट करे, तो आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्शंस की रिप्लेसमेंट करते हैं. योर S इज द स्टार्ट सिंबल. आपके पास S टेंड्स टू S1 S2 है. नाउ यू कैन रिप्लेस S1 बाई एप्सिलॉन एंड यू कैन आल्सो रिप्लेस S2 बाई एप्सिलॉन. तो जब आप इन दोनों को एप्सिलॉन से रिप्लेस करोगे तो आपको क्या प्रोडक्शन मिलेगा, यू विल गेट S टेंड्स टू एप्सिलॉन. क्या मिलेगा, S टेंड्स टू एप्सिलॉन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इन द सेम वे सपोज करो यू आर हैविंग S1 प्रोडक्शन. अब भाई आपको पहली स्ट्रिंग मिल गई यहाँ पे. नाउ आपको जनरेट करनी है कुछ और स्ट्रिंग्स. सो इन केस ऑफ अदर स्ट्रिंग्स, देखिए सपोज करो मैं अगर ओनली S1 से जनरेट करना चाहता हूँ और S2 को मैं एप्सिलॉन कर दूं. सपोज करो मेरा S टेंड्स टू S1 S2 है. यहाँ पे मैंने S2 को क्या कर दिया, एप्सिलॉन. तो व्हेन आई विल रिप्लेस S2 बाई एप्सिलॉन, सो व्हाट विल बी माय स्ट्रिंग विल बी S टेंड्स टू S1. अब S टेंड्स टू S1 में मेरे पास S1 का प्रोडक्शन क्या है, या तो मैं एप्सिलॉन कर दूं तो वो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं. नाउ यू कैन रिप्लेस दिस S1 बाई AS1. तो जब आप इसको AS1 से रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन, योर प्रोडक्शन विल लुक लाइक AS1. नाउ यू कैन रिप्लेस दिस S1 बाई A. तो जब आप S1 को A से या एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो, लेट अस रिप्लेस दिस S1 बाई एप्सिलॉन, तो सेकंड स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी. से मैंने इस S1 को रिप्लेस कर दिया किससे, A तो है भी नहीं, we will replace by epsilon. So when I will replace S by epsilon, then I will get S tends to A. तो मुझे एक स्ट्रिंग मिली A. तो A मिलने का मतलब क्या हुआ, M की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू क्या 0. भाई अगर मुझे A मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ, B की पावर 0 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, M की वैल्यू तो 1 है और N की वैल्यू क्या 0 है. और इन दिस केस भी क्या 1 इज ग्रेटर देन 0. कंडीशन सेटिस्फाइड है तो A कैन बी जनरेटेड. सो हेयर ओनली A इज जनरेटेड. ये क्लियर है सभी को. इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर we can generate all the strings that are generated by the given language. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody? So dear student, this is the way. This is the way how we can identify a given language is a regular language or a context free language or a context sensitive language. सो नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, आप इस वीडियो के सेशन जो भी ये सेशन है इसके कमेंट में डाल सकते हैं सर, इफ यू नीड मोर सेशंस. तो जिसकी भी जरूरत है यू कैन पिंग मी पर्सनली, और जिस सब्जेक्ट के आप सेशंस कराना चाहते हैं यू कैन शेयर योर टॉपिक्स विद मी वाया व्हाट्सएप और वट एवर यू लाइक. चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन. गुड नाइट.